بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. اس تاریخ کے آن لائن تدریس میں آپ تمام کا استقبال ہے. آپ کی کتاب کا سبق نمبر 10، جس کا عنوان ہے گپت عہد اور ہرش وردھن کے عہد کا سماج اور تہذیب، اس کے 3 حصوں کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ حصہ 4 کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو آئیے بنا کسی تاخیر کے حصہ 4 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، اس سے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو چینی سیاح ہے یو این شوانگ، اس کے متعلق پڑھا تھا، اور اس دور کے جو فنون اور تعمیرات ہیں، فن موسیقی ہے، فن مجسمہ سازی ہے، اور اجنتا کی گفائیں، باغ کی گفائیں، یہ سب گفائیں اور مہریں اور سکوں کے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی تھی. اب اس سبق کے بقیہ نکات ہم آج کی اس ویڈیو میں اس کا مطالعہ کریں گے. تو اس میں سب سے پہلے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں کامرانیہ، ریاضی، سائنس، فلکیات، طبی علوم، دھاتی علوم، کیمیاوی علوم اور دوسرے علوم کی ترقی و ترویج میں اس دور کا اہم عطیہ رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں گے سب سے پہلے ریاضی علوم. موجودہ دنیا میں جو ریاضی مروج ہے، رواج میں ہے، اس کی ابتدا بھارت کے ہندسوں سے ہی ہوئی تھی. بابا ریاضی کے طور پر پہچانے جانے والے آریہ بھٹ نے صفر کی کھوج کی تھی. ان کی تصنیف کردہ آریہ بھٹیم کتاب میں ضرب، تقسیم، جمع، نفی، جذر المربع، جذر المکعب، سے مقدار وغیرہ کی تجزیات اور طریقے دیے گئے ہیں. انہوں نے پائی کی قیمت 3.14 بتائی ہے. برہم گپت جگہ کا رقبہ اس کے اضلاع کی مدد سے نکالتے تھے، اور برہم گپت نے عیسوی سن 628 میں برہم سفوٹ کا اصول پیش کیا. مساوات کے طریقے دریافت کر کے کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم کرنے پر حاصل تقسیم لامحدود عدد حاصل ہوتا ہے. اس ریاضیاتی حقیقت کا تذکرہ آریہ بھٹ نے اپنی کتابوں میں کیا ہے. البیرونی لکھتا ہے کہ اعداد کی گنتی میں پہلے کوئی بھی ملک 1000 کی گنتی سے آگے نہیں بڑھتا تھا، جبکہ بھارت نے پرادرت تک گنتی گن کر، بلکہ اس سے بھی آگے تک گنتی گن کر وسعت حاصل کی تھی. اس کے بعد ہے فلکیات اور نجوم، علم فلکیات اور علم نجوم. یہ جو علم ہے بھارت کا سب سے قدیم علوم ہے. یہ دونوں علم فلکیات اور علم نجوم جو ہے وہ بھارت کا سب سے قدیم علم ہے. ویدک دور سے ہی علم نجوم کا وجود پایا جاتا ہے. برہم گپت و راہمیر، آریہ بھٹ جیسے فلکیات داں اور نجومی قدیم ہندوستان میں ہو گزرے، گپت عہد میں ہو گزرے. آریہ بھٹ نے انکشاف کیا ان کی کتاب میں، آریہ بھٹیم نام کی کتاب میں، کہ زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے اور اس سے دن رات تبدیل ہوتے ہیں. آریہ بھٹ کے بعد وراہم مہیر ایک عالم فلکیات ہو گزرے ہیں. سمراٹ وکرمادتیہ یعنی چندر گپت دوم کے دربار کے 9 رتن میں سے بھی ایک رتن تسلیم کیے جاتے تھے. انہوں نے برہد سنہیتا نامی کتاب لکھی ہے، جس میں علم نجوم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1 ہے اس میں نظام، دوسرا ہے ہورا اور تیسرا ہے سنہیتا. فلکیاتی اجرام کے انسانوں کے مستقبل پر ہونے والے اثرات، شادی، پھر کھیتوں میں فصلوں کی بوائی، واستو، کنویں کھودنا وغیرہ موقعوں کی مہرت کی تفصیلات دی گئی ہے. علم نجوم کا ایک جزو یعنی ہورا، اس علم کے اولین تخلیق کار پاراشرمونی تھے. ان کے بھرگو سنہیتا نامی کتاب علم نجوم میں آج بھی
बेहतरीन किताब मानी जाती है। इस दौर में ऋषि मुनि कोई जटाधारी साधु नहीं थे, बल्कि अजीम साइंसदां, मौजद और साहिब इल्म अफराद थे। उसके बाद आता है इल्म कीमिया, कीमियावी इल्म। नालंदा विश्व विद्यापीठ के आचार्य नागार्जुन ने रस रत्नाकर नामी कीमियावी साइंस की किताब तसनीफ़ की थी। उन्होंने पारे की राख बतौर दवा इस्तेमाल करने का तस्करा किया है। वो आम धात में से सोना बनाने के तरीके से भी वाकिफ़ थे। इल्म कीमिया की रफ़त का नमूना यानी चंद्रगुप्त दुआम का दहली, जो कुतुब मीनार के पास में वाक़े जय स्मिथ जो कुतुब मीनार के पास वाक़े है, उसकी बुलंदी 24 फीट और उसका वज़न 60 टन है। धूप, तपिश और बारिश में खुला रहने के बावजूद उसे आज तक कभी जंग नहीं लगा। ये उसकी एक खूबी मानी जाती है। 7वीं सदी में तो लोहे और सोमरस का इस्तेमाल बतौर दवा किया जाता था। उस वक्त के कारीगर लोहे को पिघलाने के तरीके से बखूबी वाकिफ़ थे। ऐसे लोहे से लश्करी साजो सामान, बख्तर, तलवार, भाले वगैरह बनाए जाते थे, जो पूरे मुल्क में मशहूर व मारूफ थे। उसके बाद इस दौर के समाजी हालात के गैर मुल्कों के ताल्लुक़ से भारतीयों की ग़िज़ा, पोशाक और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली रहनुमा होनी शुरू हुई थी। लोगों का रहन सहन नहायत सादा और सहल होने के बावजूद बिलउमूम लोगों का मियार ज़िंदगी बुलंद था। आमद और रफ्त के लिए लोगों को रास्ते की बाएं जानिब से चलना होता था। ज़्यादातर लोग खुले पैर रहा करते थे। घर में लोग पासों के खेल खेला करते थे। वक्त से वाकिफ़ियत के लिए घटका यसर यानी पानी और रेती से बनी हुई घड़ी इस्तेमाल होती थी। ड्रामे, मेले, ठेले और ज़ियारत अवामी ज़िंदगी को खुशियों से मालामाल कर देते थे। ऐसे सुखी और खुशहाल समाज का अक्स उनके अदब पर पड़ा और अदब जगमगा उठा। यूएन शुआंग नोट करता है कि रुपयों की लेन देन में लोग भी धोखाधड़ी से काम नहीं लेते थे। ऊंची एड़ी के जूते भी पहनने की इब्तिदा हुई थी। ताहम बाद में हमारे कौमी पोशाक धोती और कमरबंद ने दोबारा अपना मखसूस मकाम हासिल कर लिया था। वो कमरे से ऊपर के हिस्से में मफलर या खीस नेज़ ऊपरी पहरन का इस्तेमाल करते। सर पर साफा या पगड़ी पहनने का रिवाज आम था। बौद्ध साधु सफ़ेद और बिना सिले हुए कपड़े पहना करते थे। मर्द कान के कुंडल, अंगूठी, गले के हार और कीवर के नाम से मारूफ हाथ के कड़े या बाजूबंद पहनते थे। उसके बाद उस दौर के औरतों के हालात के अहद गुप्त के समाज में औरतों के मकाम को लेकर बाज़ दिलचस्प बातें मशहूर हैं। इस अहद की औरतें जिस्म पर खुशबूदार मादों का इस्तेमाल करती थी। आला तबकात की औरतों में अपने शोहर को पसंद करने स्वयंवर का रिवाज अब भी जारी था। औरतें आज़ादाना तौर पर घूम फिर सकती थीं। औरतें खूबसूरत लिबास और जेवरात ज़ेबतन करती। गले का हार, कमरबंद उस वक्त के सबसे मशहूर जेवर माने जाते थे। औरतों के बाल संवारने के और उन्हें दिलकश तरीक़ों से बांधने का रिवाज अजंता की तस्वीर में भी देखा जा सकता है। होठ रंगने का चलन था और चेहरे की आराइश व ज़ेबाइश के लिए मादे रिवाज में थे। औरतों में कमर पर अनवा व अक़साम के खूबसूरत कपड़े बांधने का रिवाज आम था। संदल जैसे खुशबूदार लेप से जिस्म को खूबसूरत बनाकर हाथ की हथेली और पैर की एड़ी और नाखून को रंगने के फ़नून लतीफ़ा की इस दौर की औरतों में खासी पजीराई थी। उसके बाद इस दौर के माशी हालात के इस अहद में गैर मुल्कों से बेपनाह सोना, चांदी और कीमती पत्थर तिजारत की वजह से भारत में आता, जिसकी वजह से भारत मकामी तौर पर खुशहाल मुल्क बना। गैर मुल्की अक़वाम से तालीमात की वजह से ईरान, चीन, वस्ती एशिया, नेज़ मिस्र और यूरोप जैसे ममालिक के साथ भारत की तिजारत के ताल्लुकात गहरे बने। नतीजतन प्रयाग, काशी, उज्जैन, मथुरा और
तक्षशिला, वैशाली जैसे शहरों ने तिजारती मराकज़ के तौर पर खूब तरक्की हासिल की थी। लोगों के घर में ऐश व इशरत और आराइश के सामान में इजाफा हुआ। इस दौर में खंबात, भरगू, कच्छ, तामर, लिप्ती और सोपारा जैसी बंदरगाहों की शान व शौकत थी। ज़्यादातर लोग गांव में रहते थे। वो खेती और मवेशी पालने का काम करते। ज़राअत की तरक्की के लिए रियासत की जानिब से सिंचाई का बंदोबस्त किया जाता। स्कंदगुप्त के दौर में जूनागढ़ में पिछला बंद टूट जाने के सबब सुदर्शन तालाब पर बंद की मरम्मत करवाई गई थी। हर्ष के दौर की माशी हालत के मुतालिक शियू की नामी किताब में UN शुआंग ने लिखा है कि सरकारी इंतज़ामिया कुशादा दिल है, कवानीन अवाम के मफाद में है। किसानों से वीट यानी उजरत बिना की मजदूरी नहीं करवाई जाती। रियासत को ज़रूरत पड़ने पर खेत के मजदूर बुलाए जाते और उनको उजरत चुकाई जाती। महसूल की मिकदार नहायत कम थी। नतीजतन लोग सुकून से जी सकते थे। जो रियासत की ज़मीन जोतता उसे अपनी पैदावार में से छठा हिस्सा रियासत को चुकाना पड़ता था। ताजिर अपनी तिजारत की गर्ज से सफ़र किया करते, जिनको नदी पार करने के लिए या ज़कात नाके पर कुछ मामूली रकम बतौर टैक्स अदा करनी पड़ती थी। तिजारत में तरक्की होने के सबब व्यापारी मंडल और जमातों को तश्कील दिया गया था। लोग संघ में अपना सरमाया रखा करते और सूद हासिल किया करते। रोम में हीरे, मोती, गरम मसाले, हाथी दांत, रोमन तिजारत हिंदुस्तान से होती थी। वो ज़रूरी माल सामान लेकर उसके बदले में खूब सोना दे जाया करते थे और गैर मुल्क से खुश्क मेवे, खुशबूदार इत्र, कीमती मादे वगैरह भारत में दरामद किए जाते थे। कांच के सामान बनाने के लिए सख्त पत्थरों को काटने के लिए, तेज़ पत्थरों को तराशने के लिए फ़नून ने तरक्की की थी। रेशमी कपड़े और पटसन के कपड़ों पर छपाई काम वगैरह जैसे हुनर और सनतों को फ़रोग़ मिला था। मुल्क में कश्ती और जहाज़ बनाने की सनत चलाई जाती थी। 200 से ज़ायद लोगों को समा सके इतने बड़े पानी के जहाज़ बनाए जाते थे। आमद रफ्त के ज़राए में बैलगाड़ी, ऊँट, घोड़े, हाथी, कश्ती और जहाज़ इस्तेमाल किए जाते। इस तरह अहद गुप्त और हर्षवर्धन के दौर की माशी सरगर्मियाँ अवाम की फलाह के लिए नेज़ अवाम के मफाद में थी। उसके बाद इस दौर के मजहबी हालात के गुप्त बादशाह और सम्राट हर्ष मजहबी रवादार थे। उनका मजहबी नज़रिया फ़र्राग दिलाना था और वो दूसरे मज़ाहिब और उनके उलमा का एहतराम करके फ़र्राग दिली के साथ उनकी मदद करते। कई बार एक ही ख़ानदान के लोग अलग अलग मज़हब को मानते और कुल मिलाकर लोग उसूल व कवानीन के तहत ज़िंदगी गुजारते थे। सम्राट हर्ष शिव मज़हब का पैरोकार होने के सबब माहेश्वर कहलाता था और चीनी मुसाफिर UN शुआंग बौद्ध मज़हब के महायान फ़िरके का पैरोकार था। लिहाजा उसने कन्नौज में एक कुल मज़ाहिब अजलास का एहतमाम किया था, जिसका जुलूस 21 दिन तक निकाला गया था। उसके अलावा उसने गंगा के किनारों पर 100 फीट की बुलंदी वाले हज़ारों स्तूप बनवाए थे। हिंदू मज़हब की बनिस्बत उसने बौद्ध मज़हब के साथ ज़्यादा कुशादा दिली दिखाई थी और बौद्ध मज़हब को मुल्क में और मुल्क के बाहर गैर ममालिक में जामे तौर पर शर्फ कबूलियत दिलवाई थी। चुनांचा उलमा हर्षवर्धन को शाही मुबल्लिग भी कहते हैं। वो अपनी रियासत में मुरव्वज तमाम मज़ाहिब को खैरात देने के लिए रियासत का कुल आमदनी का चौथा हिस्सा अलग रखता था और दो हिस्सा मजहबी उमूर के लिए इस्तेमाल करता था। उसने परियाग मोकश महोत्सव का एहतमाम किया था, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को शामिल किया गया था और बौद्ध, सूर्या और शियो तीनों देवताओं की पूजा करवाई थी। त्रिकाल, शाम, तप, व्रत और रोज़े की अहमियत बढ़ते जा रही थी। उस वक्त भारत की आवाम में काबिल हैरत इत्तेहाद था।
मथुरा अगर हिंदुओं का था तो उतना ही बौद्धों का भी था और उतना ही जैनों का भी था। अदब और इखलाक का विरसा भी सबका मुश्तरका ही था। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये हिस्सा 4 यहाँ मुकम्मल होता है। इस सबक के बकिया नुकात हम आइंदा वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।